Good morning, students. How are you? I hope you will be good at your home and wants to study, right? So today is my first class, and in my first class, I want to say that all students, please listen my voice carefully. After that, you do anything, okay? So the name of the first chapter is computer system. Computer system. So what is computer system? Computer system tells what are the function of computer, okay, what are the parts of computer, okay, what are the parts, what are the devices that are connected to the computer, what are the parts that are inside the CPU, how does it works, what are the basic function of computer. So everything we have to study in this chapter, okay. So first thing, computer system. So what is the full form of computer? The full form of computer is commonly operated machine particularly used for technical education research. Okay. So what is the definition of computer? This is the figure of computer, but the question is what is computer? So the definition of computer. Computer is an electronic machine. The computer is an electronic machine that works, that follow the instruction given by us, okay. Computer is an electronic machine that follow the instruction given by us, okay. In other words, we can say that some people tells that computer is a magic machine. How does it works like a magic? Simple. Suppose a man uh, uh, takes 1 hour to do any hard task, but the computer do a very few seconds to do any difficult task. This is the big advantage of computer, okay. Here it is written as computer is very useful and unique machine. Different people use computer for doing different works. It makes our work easier, okay. This is the desktop computer. A computer plays an important role in our day-to-day life. It is also used for entertainment like watching cartoons, movies, playing games. You all know it is very entertainment device. A computer is being operated by human beings, but it has some unique features that it makes it different from human beings. So in this chapter we will study what is the difference between computer and human beings. So the first one, this is computer and this is human beings. So computer works very fast, but human beings work slower than computer, okay. Computer works very fast and human beings works very slower than computer, okay. Second point, computer never makes any mistake, but human beings can make mistake. Computer store large amount of information and never gets tired, but human beings tend to forget and needs rest. Means human beings require needs rest. Rest is the important part of human beings, but computer don't want any type of rest, okay. Next point, computer cannot take its own decision, but human beings can take own decision. It computer works on the instruction given by human beings, but human beings do not need any order to work, okay. Computer has no feeling, it has no any emotion, it does not need food, but human beings have feelings and emotions, they need food to live. This is the difference between human beings and computer, okay. So next topic, computer is a machine that has various types of usage.
So the use of computer in home, school, offices. So what are the use of computer in home? In home, various people listen music, watching movies, for completing homework and searching information on any subject, playing games. In a school, the computer used for teaching. Okay, I am making a video. How it is used for teaching purpose. The second point is for keeping reports of teachers and student. Okay, last, for preparing papers, results and timetable. These tasks followed in schools. Offices, for keeping records of office, for typing and printing of documents, for sending and receiving emails, electronic mail. Banks, for keeping details of customer accounts, for withdraw money from ATM. What is withdraw? विड्रॉ मीन्स निकालना है। एटीएम से हम लोग पैसा जो निकालते हैं उसको विड्रॉ बोलते हैं। फॉर सेविंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांसफर्ड मनी, ठीक है, जो ट्रांसफ़र कर किए हैं मनी का उसका रिकॉर्ड इसमें सेव होता है। हॉस्पिटल्स में क्या इसके यूज होते हैं? फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एंड एम्प्लॉयज, फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स एंड एक्सरे etc, फॉर हेल्पिंग डॉक्टर्स टू नो मोर अबाउट डिजीज एंड देयर काउजेज। अब इससे हम लोग क्या कर सकते, जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से डिजीज का पता लगा सकते हैं और उसका कैसे ख़त्म करना, उसका कैसे हुआ है, वो सारा इंक्वायरी ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट में फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ टाइमिंग ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन। कंप्यूटर से हम लोग ट्रेन का अराइवल टाइम, डिपार्ट वाला टाइम दोनों हम लोग सेव कर सकते हैं। फॉर बुकिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट, इसके थ्रू हम लोग बुक कर सकते हैं टिकट को, कैंसिल कर सकते हैं टिकट को। फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। ओके, स्पीड के बारे में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स द मेन थिंग इज हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। आखिर कंप्यूटर वर्क करता है तो कैसे करता है। सबसे पहले आप लोग एक फिगर को अच्छे से देखो। इस फिगर में क्या दिख रहा है? एक यहाँ पर वाटर है, वाटर को लिया गया है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है टेक वाटर। सेकेंड नंबर है कीप इट इन फ्रिज, अब इसको फ्रिज में रखा गया है इसी। तो जब कुछ देर के बाद या फिर कुछ आवर के बाद इसको देखा जाए तो ये पानी जो था इस फॉर्म में आ गया, इस आइस इज फॉर्म्ड, आइस हो गया। ये अगर फिगर नहीं समझ में आप लोग को आया, सेकेंड फिगर आप लोग देखो, यहाँ डर्टी क्लोथ्स है, उसको वॉशिंग मशीन में डाला गया तो वो जो सारा क्लोथ जो डर्टी क्लोथ था वो यहाँ क्लीन क्लोथ के रूप में आ गया। ठीक, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो अब यहाँ देखो, मतलब कंप्यूटर वर्क करता है आईपीओ साइकिल पर। आईपीओ का मतलब होता है आई मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट, पी मतलब प्रोसेसिंग, मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो सेंस यहाँ पे जैसे एग्जांपल इसलिए बताया गया है क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आप लोग अच्छे से क्लियर हो सकते हो। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में हम लोग ये समझना है जैसे कि इनपुट में क्या होता है, सम डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो इट वर्क्स विद द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और आउटपुट मतलब इट गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ द गिवन डाटा और इंस्ट्रक्शन, और ये रिजल्ट जो डाटा हम लोग दिए हैं उसका रिजल्ट देता है। व्हेन डाटा इज एंटर्ड इन अ कंप्यूटर इट प्रोसेस इट एंड गिव्स यू द आउटपुट। मतलब सिंपल है, जब प्रोसेस होगा तो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मतलब ये फिगर से आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाओगे। अब यहाँ पे इनपुट क्या होता है, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट तो आप लोग समझ में आ गया होगा, लेकिन इनपुट होता क्या है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन डेट वी इंटर द कंप्यूटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द एज इनपुट। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, ग्राफिक्स टैबलेट, लाइट पेन etc। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब देख रहे थे आप, इनपुट में हम लोग वाटर को लिए थे, उसको प्रोसेस करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया था आइस में। तो उसी तरह से प्रोसेसिंग वही होता है। प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट। सीपीयू वर्क्स ऑन द कलेक्टेड डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, द डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड सेंट आउट एंड विच यू व्यू इन योर कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड आउटपुट। सिंपल समझ लो, जो हम लोग रिजल्ट देखते हैं अपने मॉनिटर्स के ऊपर, ठीक है,
जो हम लोग रिजल्ट देखते हैं, जो इनपुट जब प्रोसेस होने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ भी है, द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड सेंड आउट and which you view on your computer monitor is called output. Examples of output devices are monitor, printer, speaker, etc. Now understand the working of a computer with an example. यहाँ पे देखिए इनपुट में क्या है, 8 और 7 है और यहाँ एक प्लस का साइन है, बस ये 3 इनपुट लिया गया है। अब यहाँ प्रोसेस किया गया, 8 7 प्लस को मिडिल में लाकर इसको ऐड किया गया है, ठीक है। अब 8 7 का रिजल्ट क्या है 15, वो यहाँ आउटपुट में शो किया। फर्स्ट यहाँ देखिए, इनपुट आर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर, हियर 8 and 7 आर द डाटा एंड प्लस इज द इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ CPU एड्स द नंबर 8 and 7 सो द एडिशन इज प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, वो प्रोसेस हुआ। थर्ड नंबर आउटपुट, द आउटपुट ऑफ द एडिशन इज 8 + 7 = 15, द रिजल्ट विल बी द शोन बाय द कंप्यूटर मॉनिटर, इट इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ये समझें, ठीक है। Computer accept data as its input, process it by doing some calculation and gives the result as an output. Thus, a computer system is made of 3 important parts: input devices, central processing unit and output devices. ये तो था आज भर का इतना ही था, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से फिर एक साथ समरी हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग ये बताएं कि कंप्यूटर और मैन में क्या डिफरेंस है। कंप्यूटर कोई भी काम को आसानी से कर सकता है, लेकिन मैन उसको आसानी से कर नहीं सकता है, ठीक है। जो कंप्यूटर कोई किसी भी वर्क को विद इन सेकेंड में कर सकता है, वो मैन क्या कर सकता है, उसे 1 आवर से ज़्यादा में, या उससे मतलब इतना तो है कंप्यूटर से ज़्यादा टाइम लगाता है वो। इसके बाद फीलिंग्स होती है मैन के पास, क्योंकि वो रोने लगता है कोई भी तरह, अगर काम को नहीं पूरा कर पाएगा तो वो रोने लगता है, या फिर किसी तरह की उसका इमोशन शो करता है। लेकिन वो कंप्यूटर में ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं होते, ना इमोशन होते हैं, ना उसे कोई फूड की ज़रूरत है, ना उसे कोई रेस्ट की ज़रूरत है। बट ये सारा फीचर्स मैन में होते हैं, ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा डिफरेंसेस था। अब है कि इसका यूज तो सबको पता होगा, होम में इसका यूज क्या होता है, स्कूल में इसका क्या यूज होता है, ऑफिसेस में क्या यूज होता है, ठीक है, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट्स में। अभी जैसे मैंने बताया कंप्यूटर ये वर्क कैसे करता है, तो ये वर्क करता है IPO साइकिल के रूप में। आई मीन्स इनपुट, P मीन्स प्रोसेस एंड O मीन्स आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में अगर हम लोग कोई वाटर लेते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग IPO साइकिल, ठीक है। सेकंड फिगर हम लोग का था डर्टी क्लॉथ, ये गंदा क्लॉथ है, उसको वॉशिंग मशीन में जानते हैं, वहाँ प्रोसेस हुआ तो ये क्लीन क्लॉथ के फॉर्म में हम लोग को मिला। थर्ड नंबर था, जैसे कोई नंबर है 8 7 प्लस, ये सब सारा इनपुट लिया गया, अब उसमें एडिशन करता है, प्लस को 8 7 के साथ प्लस करते हैं तो प्रोसेस हुआ, तो रिजल्ट क्या मिला 15 आया, तो 15 इज द आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसके बाद, और जितना आज पढ़ाई हुआ है उसको आप लोग अच्छे से वीडियो को सुन लोगे, ठीक है। जब अच्छे से सुन लोगे तब तुम लोग को क्वेश्चन आंसर करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।